Hello friends, welcome to Green Wallet and Citizen Justice Forum Social, Legal and Financial Literacy Awareness Video Series। दोस्तों, ग्रीन वैलेट और सिटीजन जस्टिस फोरम के माध्यम से सामाजिक, कानूनी और वित्तीय साक्षरता और जागरूकता वीडियो श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता जो अभी लेटेस्ट जो चैलेंज हुआ है, अभी चेंज हुए हैं ज्यूरिसडिक्शन पिक्यूनरी, उसके बारे में बात करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाइज कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021 रिवाइजिंग पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल कमीशन। केंद्र सरकार ने जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार को संशोधित करते हुए उपभोक्ता संरक्षण नियम 2021 की अधिसूचना जारी की है। The central government has notified the consumer protection jurisdiction of the district commission, the state commission and the national commission rules 2021 that aims to revise the jurisdiction of all three commissions, that is district, state, national commissions। केंद्र सरकार ने उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार नियम 2021 में जो बदली की है वो हम देखते हैं। अधिसूचना जारी की, इसका उद्देश्य तीनों आयोगों को यानी जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार का संशोधित करना है। सिग्निफिकेंटली, द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 promulgates a three-tier quasi-judicial mechanism for redressal of consumer disputes, namely district commissions, state commission and national commission. The act also stipulates the pecuniary jurisdiction of each tier of consumer commission। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में उपभोक्ता विवादों के निवारण के लिए 3 स्तरीय अर्ध न्यायिक सिस्टम की घोषणा की गई है। अधिनियम उपभोक्ता आयोग के प्रत्येक स्तर, जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोग के आर्थिक क्षेत्राधिकार को भी निर्धारित करता है। The revised financial ambit of consumer complaints that can be examined by district, state and national commission is as follows। The district commission shall have the jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods or services paid as consideration does not exceed 50 lakh rupees, that is up to 50 lakhs. Earlier, the limit was up to 1 crore. The state commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods and service as consideration exceeds 50 lakh but does not exceed 2 crores. That is above 50 lakh and up to rupees 2 crores. Earlier limit was up to 1 crore and from 1 crore up to 10 crores. The National Commission shall have jurisdiction to entertain complaints where the value of the goods and services paid as consideration exceeds 2 crores rupees, above 2 crores. Earlier the limit was above 10 crores. जिला, राज्य और राष्ट्रीय आयोगों द्वारा जांच की जा सकने वाली ग्राहक शिकायतों का संशोधित वित्तीय दायरा इस प्रकार है। जिला आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए तक है। पहले इसकी सीमा 1 करोड़ तक की थी। राज्य आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां भुगतान रूप में भुगतान की गई वस्तुओं के सेवाओं मूल्य 50 लाख से अधिक, लेकिन 2 करोड़ रुपए से अधिक नहीं, यानी 50 लाख से 2 करोड़ तक की सीमा है। पहले ये सीमा 1 करोड़ से अधिक और अधिकतम 10 करोड़ की थी। राष्ट्रीय आयोग के पास उन शिकायतों पर विचार करने का अधिकार होगा जहां प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 2 करोड़ से अधिक, पहले की सीमा 10 करोड़ से अधिक है। Importantly, after Consumer Protection Act 2019 came into force, it was observed that the existing provisions relating to pecuniary jurisdiction of consumer commissions were leading to cases which could earlier be filed in National Commission to be filed in State Commission and cases which could be earlier filed in State Commission to be filed in District Commissions. This caused a significant increase in the workload of District Commissions, leading a rising pendency and delay in disposal of cases, defeating the very object of securing speedy redressal to consumers as envisaged under the Act. Therefore, above changes have been brought in by notifying the consumer protection
jurisdiction of this district commission, state commission and national commission. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के लागू होने के बाद यह देखा गया कि उपभोक्ता आयोग के आर्थिक अधिकार से संबंधित मौजूदा प्रावधान ऐसे मामलों की ओर ले जा रहे जो पहले राष्ट्रीय आयोग में, राज्य आयोग में और दायर किए जा सकते थे, और ऐसे मामले जो पहले जिला आयोग में दायर किए जा सकते थे लेकिन अब राज्य आयोग में दायर किए जाएंगे। इससे जिला आयोग के कार्यभार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके कारण लंबित मामलों की वृद्धि हुई और मामलों को निपटाने में देरी हुई। उपदाओं के त्वरित निवारण प्राप्त करने के उद्देश्य को विफल कर दिया गया, जैसा कि अधिनियम के तहत प्रचलित है। इसलिए उप आयोग परिवर्तन उपभोक्ता संरक्षण जिला आयोग, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग के क्षेत्राधिकार नियम 2021 की अधिसूची करके किए गए हैं। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ये मेरे कॉन्टेक्ट डिटेल्स का पेज है जिसमें आपको व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, फेसबुक के पेज, ट्विटर अकाउंट, ब्लॉग जो है वो मिलेगा, वेबसाइट मिलेगी और यूट्यूब चैनल मिलेगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और आपके कॉन्टैक्ट में शेयर कीजिए।